Hello and welcome to the correspondent.pk. This is your host اسماعیل قاسم. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. حمزہ شہباز کا بطور سی ایم پنجاب انتخاب کا عدم قرار دے دیا گیا. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سلمان درانی اور آسن گیلانی صاحب, سینئر تجزیہ کار. بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں سلمان درانی کی جانب پڑھوں گا, انہیں مبارکباد دوں گا اور پھر ان سے جانوں گا کہ کیا تاثرات ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے, کیا یہ تھوڑی سی ایک سوالیہ نشان کی نشاندہی نہیں کر رہا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اہل پنجاب کو اور اہل پاکستان کو مبارک کہ جو غیر آئینی اقدام ہوا تھا 16 اپریل کو, وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور جس کرائسس کا آغاز ہوا تھا, آج لاہور ہائی کورٹ نے اس پر سوالیہ نشان تو اٹھایا. یہ پہلا قدم. آگے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی, امید ہے, اور ضرور آئیں گی. چھوٹا امپورٹنٹ نکالا گیا ہے, بڑا امپورٹنٹ بھی نکالا جائے گا. ہاں, بات ضرور جو ہے وہ بستی ہے کہ گنتی کس کی پوری ہوتی ہے, ری پولنگ میں کس کی نہیں ہوتی. اس پہ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے, اور یہ کلیئر ہوگا جس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے پنجاب کی, خاص طور پہ ان کی پریس کانفرنس آتی ہے, اس کے بعد اس چیز پہ ڈسکس ہو سکتا ہے. لیکن پنجاب کے عوام کو ایک دفعہ پھر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے سفر کیا, ان کی نااہلیوں کے اور یہ جو مس مینجمنٹ جو انہوں نے کریٹ کر دی, پورے صوبے کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اپنی نااہلی سے, وہ سفر کرتے رہے. تو یہ عوام جو 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آگے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی, اور یہ عوام کے لیے انشاءاللہ دیر ہے, اندھیر نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آسن صاحب مجھے بتائیں کہ نمبرز گیم کی بات کی ہے سلمان درانی نے, کیسے دیکھتے ہیں نمبرز کو, کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بھائی, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں آرٹیکل 134 کے تحت, سب سیکشن 4 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے, ہمیں جو پریزنٹ نمبر ہے ممبرز کا اس کو لینا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے 25 ممبرز جو ڈی سیٹ کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا. ان کو اگر نکال دیں تو آپ کے پاس پیچھے جو نمبر بچتے ہیں وہ 326 کا ہاؤس بچتا ہے. اب 326 کے ہاؤس میں سے انہیں میجورٹی اپنی پروو کرنی ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 158 اس کے اپنے ممبرس ہیں, 10 پی ایم ایل کیو کی اس کو سپورٹ ہے, 168 بن جاتے ہیں. اس طرح پی ایم ایل کی طرف آتے ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے ممبرس 164 ہیں, 4 انڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ ہیں, 1 راہ حق کے اور 7 پیپلز پارٹی کے. ان کو ملائے تو 176 نمبر بنتا ہے. سمپل گیم دیکھیں تو نون لیگ ابھی بھی آگے جا رہی ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انلیس جو 4 انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ٹوٹ جائیں. ہاں, اس میں ایک چیز اور ہے, ابھی تک انہوں نے جو 5 ریزروز جو ممبرس تھے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. اگر وہ کر دیں, یعنی اب گیم اس طرف آتی ہے, اگر وہ کر دیں تو ان کے 173 ممبرز ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, ادھر سے 176 پی ایم ایل این کے ہیں. اگر پی ایم ایل این کے 4 جو انڈیپینڈنٹ ان کے سپورٹرز ہیں, یا جنہوں نے ووٹ دیا ہے کینڈیڈیٹس ہیں, اگر ان کو ہم نکال دیں, ان کو پی ٹی آئی میں ڈال دیں, تو پھر پی ٹی آئی کے پاس 177 کا نمبر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی انڈیپینڈنٹس کی اس ٹائم بہت زیادہ مطلب حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ان کی امپورٹنس جو ہے وہ لفظوں میں بیان شاید نہیں کی جا سکتی. اسی سچویشن کو اور دیکھنے کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کے مصرف جمشید چیمہ نے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا مصرف صاحبہ کہ کیا تاثرات ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں, یہ فیلنگ یہ ہے کہ کم از کم یہ ثابت ہوا کہ جنگل کا قانون نہیں ہے, اور یہاں پہ 12 کروڑ کا صوبہ اور ان کے مینڈیٹ کے اوپر جس طرح سے شک خون مارا گیا, جس طرح سے ان لیگل طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سی ایم کو الیکٹ کروایا گیا, اس کی بھی کوئی دنیا میں اگزامپل نہیں ملتی. پھر بیسکلی یہ انسلٹ تھی پاکستانی عوام کی اور 12 کروڑ عوام کی, اور صوبہ یرغمال تھا, اور ان کو پتا تھا کہ غیر آئینی طور پر یہ لوگ آئے ہیں. جس طرح سے انتقامی کارروائیاں اس غیر آئینی جو انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ نے کی ہیں اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جس طرح سے پارلیمان کا تقدس پامال کیا, یہ رجیم چینج آپریشن جب سے آیا ہے پاکستان کے اندر نہ کوئی قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ عوام کے بنیادی رائٹس ہیں. یعنی کہ پروٹیسٹ کرنے کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جو جماعت تھی
उनके साथ जिस तरह से फसाइयत का, बर्बरियत का मैं कहती हूँ कि हमें जो सामना था, इसकी एग्जांपल तो फ़लस्तीन और बिल्कुल कश्मीर वाली रिजेम्बलेंस थी। मैं ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। फिर यानी कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से महंगाई का तूफान बदतमीजी, लाकानूनियत और बर्बरियत एक्सरसाइज कर रही थी, तो कम अज कम देखो, जब इतना कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, तो जब जुल्म हद से बढ़ा तो इस जाहिर है इस मुल्क के इदारे, किसी फर्दे वाहिद की इजारादारी वहाँ पे नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको ये समझ आई है, चाहे वो आपकी आला अदलियाँ हों, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, चाहे जितने भी इदारे हों, कि पाकिस्तान है तो सबका कारोबार, सबका सिलसिला चला हुआ है। जब पाकिस्तान नहीं बचेगा ना, तो फिर ये जो कुछ इस मुल्क के साथ होता आ रहा है पिछले 74 सालों से, तो उसके लिए दे नीड दिस कंट्री। अच्छा मुसर्रत साहब, मुझे बताएं कि आज के फैसले के मुताबिक कल इजलास तलब किया गया, आपके ख्याल में क्या नंबर्स पूरे हो रहे हैं? हमारे पास जी वो नंबर बिल्कुल देखें, 5 अराकीन हमारे जो रिजर्व के हैं, इंशाल्लाह उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो सारी गेम है 1-2 नंबरों की है, और जो 5 इंडिपेंडेंट हैं वो अब उनका भी दिमाग दुरुस्त इस तरह से हो गया है अवाम का रिस्पांस देखते हुए कि जो सबसे गैर पॉपुलर, गैर जमहूरी, रिजेक्टेड टोले के साथ जाना कोई भी पसंद नहीं करेगा जिसने हल्के की सियासत करनी है। और हल्कों के अंदर जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है मेरे से कहीं ज्यादा मीडिया को पता है। जितने चैनल, जितने इंडिपेंडेंट सर्वेज, जो कुछ भी लोग जिस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, जिस मार्केट में जा रहे हैं, रिस्पॉन्स आप देख लें कि ये 99 पे हम खड़े हैं, यानी कि पाकिस्तानियत वाले हैं, और ये 1% पे भी गद्दार नहीं है। 1% ही चलो कह लो, जितने ये खुद हैं उतने वो इनके खानदान मिला के ये फारिग हो गया। फारिग होने वालों के साथ जिनकी सियासत दफन होने जा रही है, उनके साथ आजाद उम्मीदवार क्यों जाएंगे? वो हमारे साथ ही जाएंगे। तो नंबर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा पूरा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान, बड़े पीटीआई के अंदर तो जो बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो हैं, इंक्लूडिंग निसार अली खान साहब, वो इनके पीटीआई के साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या ये शायद थोड़ा सा कोई ओवर कॉन्फिडेंस होगा या कुछ कोई बैकडोर, कोई बातचीत जारी है आपके ख्याल में? देखिए जी, इस पे बात हुई है, अभी थोड़ी देर पहले कोई कमेंट कर रहा था कि मिठाई पहले नहीं खानी चाहिए। पीटीआई वालों के लिए भी यही है कि मिठाई पहले ना खाएं, इसको देख लें पहले कि किस तरह सूरत हाल बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से मुसर्रत साहिबा ने अभी किसी उम्मीद का इजहार किया है कि ये जो चार इंडिपेंडेंट लोग हैं, बशमूल रायत पार्टी का जो एक वोट है इस वक्त जो कि नून लीग की तरफ है, हुकूमत की तरफ है, वो तहरीक इंसाफ की तरफ अगर आ जाता है, बशमूल उन 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें 3 ख़वातीन की हैं और 2 जो हैं वकीलियतों की हैं, तो उन्हें कोई उम्मीद नज़र आती है कि पंजाब असेंबली में उनका वोट पूरा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी आपने जिक्र किया, चौधरी निसार अली फैक्टर जो है, तो चौधरी निसार अली खान साहब, उसका मुझे कोई उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कहा जा रहा है, उस पर डिबेट हो रही है कि शायद चौधरी निसार अली खान साहब अपना वोट कास्ट करने आएँ। लेकिन ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं पंजाब असेंबली के अंदर जो आपके कायदे ऐवान बनने के लिए, एक है चौधरी परवेज़ इलाही साहब और दूसरी तरफ हमजा शहबाज हैं। चौधरी निसार अली खान ये समझते हैं, उनकी राय ये है कि वो इन दोनों से सीनियर हैं और वो इनको कंसीडर नहीं करते, और वो शायद इसी रीज़न की बुनियाद पर वोट डालने ना आए। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि नंबर गेम में थोड़ा इशू आएगा, और टेक्निकली शायद कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को एक मज़ीद बहरान की तरफ धकेला गया है, सिस्टम को, मामलात को आगे और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। लेकिन कुछ भी जो है वो लास्ट फुल स्टॉप नहीं हो सकता। डेफिनेटली पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी बदल सकता है। तो ये मुसर्रत साहिबा का जो एक इम्कान है, ये बिल्कुल माइनस नहीं किया जा सकता कि ये जो 4 इंडिपेंडेंट लोग हैं, they can come back and they can join PTI और वो वोट कर सकते हैं और सारी सिचुएशन को बदल सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब इफ्स एंड बट्स के ऊपर सारी सिचुएशन चलेगी, एंड बट लाइक यू स्टेटेड कि यू कैन नेवर
कमिट एनीथिंग, आप लास्ट सेकंड तक कुछ नहीं कह सकते, सियासत है। मैं एहसन साहब के पास आता हूँ। एहसन साहब, क्या आपके ख्याल में मुल्क दोबारा आईनी बहरान की तरफ नहीं धकेल दिया गया? क्या व्हाट डू यू थिंक, जनरल इलेक्शन आखिरी हल नजर नहीं आता पूरे पाकिस्तान का? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मुल्क को एक बार फिर आईनी बहरान की तरफ धकेल दिया गया है। मेरे नजदीक पहले तो ये इलेक्शन ही क्या कहना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये इलेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए कि आपने जो आईनी ऑफिशियल्स थे, आपके गवर्नर थे, आपने स्पीकर को, उनको आपने बिल्कुल रूल आउट करके आपने अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इजलास बुलाया। जो अपोजिशन से उस वक्त तो वो रूलिंग पार्टी थी पीटीआई, उसको आप अपोजिशन में रखे जाए, अपोजिशन वालों को आपने एक्सक्लूड करके आप एक ही पार्टी के लोगों को लेके आए हैं। जब तक दोनों पार्टीज ना हो उस वक्त तक असेंबलीज कंप्लीट नहीं होती हैं। इन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर करके अपने सारे अरकान अपने बुला के आपने ड्रामा खेल दिया और आपने इलेक्शन करवा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो मार्च से चलता चला आ रहा है, जब से इमरान खान साहब के खिलाफ आपने अदम एतमाद की करारदाद को शुरू किया। अब बात यह है कि इस वक्त अब जो सूरत हाल है, इसमें फिर वही सूरत अगर होती है तो मेरे नज़दीक तो ये फिर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होगा। अगर आप हमजा साहब को जितवाने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ क्राइसिस ऐसे आएगा कि स्पीकर साहब परवेज इलाही साहब को मैदान में आना पड़ेगा। यहाँ पे एक दफ़ा फिर जो मुझे नज़र आता है, हॉर्स ट्रेडिंग फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी नंबर गेम पूरी करनी है। दूसरी तरफ क्राइसिस ऐसी है कि आप नेशनल असेंबली के कल के इजलास ही देखिए, भूटानी साहब हैं, वो अपने एमकेएम वाले हैं, वो गवर्नमेंट से बड़े सब नाराज हैं इस वक्त। अगर उनको देखें तो लगता तो यही है कि इस वक्त पीटीआई के हक में पंजाब दोबारा से मुड़ रहा है। Tarun, that's a big statement, लेकिन obviously still too early to comment on it. Finally मैं शो के कंक्लूजन से पहले दुरानी साहब के पास वापस जाना चाहूँगा, बिकॉज मैं पीटीआई से ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं दुरानी से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताएंगे 16 अप्रैल तक तो हम वापस आ गए हैं, कितनी उम्मीद है कि हम 9 अप्रैल तक भी अगर किसी तरीके से चले जाएं तो शायद मामला और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। आई विश दैट। मुझे आपसे जानना है कि आपकी क्या राय है। पहले ये बताएं कि ये सवाल है या आपके दिल की ख्वाहिश है? इसलिए साथ मेंशन किया कि आई विश दैट टू, क्योंकि ऑब्वियसली देख लें हालात जो बने उसके बाद तो 3.5 साल की वो वाहिद हुकूमत आई है पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सस्टेनेबिलिटी सब कुछ नजर आया। हमने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है, हमने अपने केसेस माफ नहीं कराए करप्शन की, हमने सिर्फ अपनी नदियां जो है उनको और नहीं बहाया, और हमने 2 नंबरियां नहीं की। इन शॉर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हमने फैसले किए हमने वो नहीं किए। तो ओवरऑल सब कुछ तो वही जो सुहाना है वो 3.5 सालों में नजर आया। तो क्यों कोई मुहिब्बे वतन जो है वो उस वक्त में वापस नहीं जाना चाहेगा? लेकिन आपकी क्या राय है? फिर आप ये समझ लें कि आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और ये जो पंजाब का क्राइसिस पैदा हुआ है, और ये जो पंजाब का क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ, ये क्राइसिस की तरफ कोर्ट ने मजीद धकेला है। इसका मतलब ये है कि इसका आखिरी जो हल है इस मुल्क में सियासी और आईनी बहरान का, वो जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन के बाद जो हुकूमत अवाम के मैंडेट लेकर आएगी, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या फिर पीटीआई की हुकूमत हो, सब उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब धांधली और धांधा का जो फैक्टर है वो तो इस मुल्क में है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं लाई कर रही है। कल को अगर इजलास होता है पंजाब असेंबली का, वहाँ फिर खून खराबे का खदशा है, वहाँ फिर लड़ाई का खदशा है, वहाँ फिर वो तसादम होगा जो 16 को हुआ। ठीक, अब नहीं एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जा रहा, और जो इस वक्त आकर बैठ चुके हुए हैं, उन्होंने पिछले 1-2 महीने में मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किस क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है। इसको तो किसी सूरत भी आवाम की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। आवाम तो कबूल ही नहीं कर रही है इस हुकूमत को। तो जो इस वक्त अपोजिशन में है तहरीक इंसाफ, वो भी किसी तरह इसे कबूल नहीं करेंगे। जो मामला अगर नंबर गेम तक आपने कहा कि ये क्राइसिस बढ़ेगा, अगर तहरीक इंसाफ के पास नंबर पूरा नहीं भी है तब भी तसादुम है। क्यों? क्योंकि ये आवाम की राय से और आवाम के मैंडेट और आवाम का वोट लेकर ये गवर्नमेंट नहीं आई। सो द फाइनल कंक्लूजन इस पे बात जहाँ ख़त्म होगी इस मुल्क में, जहाँ क्राइसिस ख़त्म होगा, वो है जनरल इलेक्शंस। जो मुक़्तदरा हैं, जो फैसला साज लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको फैसला करना है कि मामलात 16 अप्रैल नहीं बल्कि 9 अप्रैल तक वापस लेकर जाएं, रिवर्स करें,
اور معاملات وہاں سے آگے بڑھائیں کہ کیا کریں تاکہ حالات بہتر ہو سکیں. بہت شکریہ سلمان آپ کے وقت کا, بہت شکریہ احسن صاحب آپ کے وقت کا مجھے جوائن کرنے کے لیے اس شو کے اندر. جتنے مرضی جو مرضی بھی ہو جائے, کوئی پی ایم این این کا ووٹ زیادہ لے جائے, پی ٹی آئی لے جائے, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل ڈیلیما ہے وہ وہیں رہے گا. اس کا صرف اور صرف حل جو ہے وہ عام انتخابات ہے. اس کے بعد جون سی پارٹی اکثریت بنا لیتی ہے, جیت اسی کی ہوگی اور عوام کی سپورٹ بھی اسی کو حاصل ہوگی. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.